How are you, students? Now, class 11 physics, chapter 1st, units and measurements. So you have read physical relation, physical quantity, unit, system of units, and dimensional formula and dimension analysis. Dimension of physical quantity, dimensional formula, and dimensional equation, principle of homogeneity. These things you have read. Now you will study applications or usage of dimensional analysis. There are three applications. These three applications you will study. These are asked in the examination. So you will study carefully. Okay. So first this is to check the correctness of physical relation. यानी इसमें फॉर्मूला है. फॉर्मूला क्या होगा? V इज इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS. इस तरह का फॉर्मूला जो है, इस तरह का जो फिजिकल रिलेशन है, इसको चेक करना वेदर इट इज करेक्ट और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स. ओके. दूसरा जो है टू कन्वर्ट वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. इसमें कन्वर्ट करना है. न्यूटन फोर्स का यूनिट है SI यूनिट में, और डाइन फोर्स का यूनिट है CGS सिस्टम में. सो यू विल कन्वर्ट फ्रॉम SI यूनिट टू CGS सिस्टम. यू विल कन्वर्ट न्यूटन इनटू डाइन. दिस तरह से यू विल स्टडी. नाउ दिस इज टू डेराइव द थर्ड एप्लीकेशन, टू डेराइव फॉर्मूला. So you will study some formula. You will derive centripetal force F is equal to mv square by r, T is equal to 2 pi under root L by g. So these things you will study one by one. So one by one. So now first application you can see to check the correctness of physical relation. This you will study. Now examples you can see. First V is equal to U plus AT. Second S is equal to UT plus half AT square. Third V square is equal to U square plus 2AS. You are familiar. Okay. ये सभी फॉर्मूला से just you know these formula, and then you one by one you will prove it. Okay, you will check with the help of principle of homogeneity. This you can see solution. The question क्या हो गया? To check this formula. First we can see prove V is equal to U plus AT. You will remember dimensional formula. V is equal to क्या होता है? S by T यानी L by T यानी LT minus 1. एक्सेलेरेशन क्या होता है? V by T means LT minus 2. You will remember. Always it will help. वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला और एक्सेलेरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला. नाउ यू विल राइट LHS. LHS क्या है? वेलोसिटी. वेलोसिटी क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला. दिस यू आर गेटिंग LM to the power 0, LT to the power minus 1. This you are getting LHS. Okay. और RHS क्या हो जाएगा? RHS this you are getting U plus AT. So this you will write U means velocity. Velocity this you will write M to the power 0, L T to the power minus 1. प्लस देखो A क्या है? एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन के लिए दिस यू कैन राइट कि M टू द पावर 0, L T टू द पावर माइनस 2, और ये A का प्लेस पे, और ये T के प्लेस पे T हो जाएगा. कैपिटल ब्रैकेट यू विल राइट. सो नाउ दिस यू कैन से M टू द पावर 0, L T टू द पावर माइनस 1, अब प्लस यहाँ भी हो गया M L T टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पावर 1 है. बेस सेम है, पावर क्या ऐड हो जाएगा? -2 + 1 यानी T to the power -1.
Now you can see LHS RHS according to principle of homogeneity. होमोजेनिटी क्या पढ़ा है? बोथ साइड्स डायमेंशन विल बी सेम. डायमेंशन मीन्स पावर ऑफ MLT विल बी सेम. यहाँ RHS में क्या है? दो टर्म है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म. LHS में देखो पावर M का क्या है? 0. यहाँ भी RHS में क्या है? 0. और यहाँ पावर क्या हो गया? ये 0 हो गया. मीन्स पावर इज सेम, पावर ऑफ M इज सेम. L का पावर क्या है? 1 है. और यहाँ भी L का पावर क्या 1 है. और ये ईच एंड एवरी टर्म में क्या होना चाहिए? 1 है. LHS में T का पावर -1, RHS में T का पावर -1 फर्स्ट टर्म में, सेकेंड टर्म में भी T का पावर माइनस है. यानी क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोथ साइड्स डायमेंशंस आर सेम. आफ्टर दैट यू कैन से according to principle of homogeneity, therefore you can say LHS is equal to RHS. This you are getting LHS dimensional formula, RHS dimensional formula, both side dimensional formula are same. यानी each and every term क्या होता है? डायमेंशनल सेम है. Then you can say that therefore B is equal to U plus AT. ये क्या होगा? The relation, this relation is correct. So the given relation is correct. Now second one you can take. Second one, S is equal to UT plus half AT square. This you can take. The LHS you can take. LHS क्या होगा? S. S means distance, length. L. L को क्या लिख सकते हो? M to the power 0, L to the power T to the power 0. ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS. अब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS यू कैन राइट. RHS क्या होगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. U के प्लेस पे क्या लिख सकते हो? L T to the power -1. U के प्लेस और T के प्लेस पे T टाइम T लिख सकते हो. अब यहाँ सेकेंड टर्म है प्लस हाफ A के प्लेस पे लिख सकते हो. यहाँ A के प्लेस पे L T to the power -2 और यहाँ T टाइम कैपिटल T लिखोगे, कैपिटल T और ये पावर 2 हो जाएगा. देन यू आर गेटिंग दिस. इसको लिखो MLT के फॉर्म में. M to the power 0 L हो जाएगा और ये T to the power यहाँ क्या पावर 1 है, बेस से हमें पावर क्या होगा? 8 हो जाएगा. तो -1 + 1 0 हो जाएगा. M to the power यहाँ क्या हो जाएगा? M to the power 0, L to the power 1 और T to the power 0 हो जाएगा. अब प्लस हाफ M to the power 0 और देखो यहाँ L है और T to the power -2, T to the power 2. पावर बेस से हमें पावर 8 हो जाएगा. देन T to the power 0. नाउ LHS you can see. LHS क्या होगा? M to the power 0. यहाँ भी क्या है? M to the power 0. L to the power 1. यहाँ भी क्या है? L to the power 1. RHS में क्या है? दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. LHS में L to the power 1, RHS में L to the power 1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में L to the power 1 और T to the power LHS T to the power 0. यहाँ भी क्या है? RHS में T to the power 0 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म T to the power 0. यानी बोथ साइड्स व्हाटएवर यू हैव सीन, बोथ साइड्स डायमेंशंस आर सेम. डायमेंशन इज पावर. ये हाफ नहीं देखना है. डायमेंशंस क्या हो गया? पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, पावर ऑफ MLT. LHS is equal to power of MLT RHS. Each and every term, there are two terms. इस टर्म का भी पावर, इस टर्म का भी पावर है. डायमेंशन क्या है? बोथ साइड्स डायमेंशंस आर सेम. सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यू कैन से LHS is equal to RHS. The LHS is equal to RHS you can say, and then this formula you can say S is equal to UT plus half AT square. So the given relation is correct.
So the given relation, given formula is correct. There is one more formula. Hope the third one you will do. Now second one you can see, second application. Second application, to convert one system of unit into another system of units. For example, you can see convert क्या होगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 डाइन। और दूसरा कह सकते हो एनर्जी का यूनिट क्या है, जूल है, ऐसा यूनिट में सीजीएस सिस्टम अर्ग है, तो क्या हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग, ERG. So now you will convert this. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne, 1 Joule is equal to 10 to the power 7 erg. This now you will do this. Before doing this, there is one formula. One formula you will remember. One this formula. यहां पर देखो क्या है, 1 है और ये क्या है, वो यूनिट हो गया। इधर क्या है 10 to the power 5 नंबर है और ये इस तरह से क्या कर सकते हो, ये N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1, यानी यहाँ N क्या है, नंबर है एक सिस्टम में, और N क्या हो गया, यूनिट हो गया, और इधर क्या है, नंबर है N2 N1 नंबर है दूसरे सिस्टम में, और ये क्या हो गया, यूनिट है डाइन। तो यहां पर दिस यू कैन राइट नंबर क्या हो गया N2, अब ये यूनिट कर सकते हो किसमें, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल m to the power 2 a b c इज इक्वल टू N1, और यूनिट दूसरे सिस्टम में M1A L1B T1C. This you will remember. So now this you can say N2 is equal to क्या हो जाएगा, ये N2 is equal to this divide by this whole divide by this. So ये क्या हो जाएगा N1, और ये M1 by M2 whole to the power A. यहां क्या हो जाएगा L1 by L2 whole to the power B, और ये यहां क्या होगा T1 by T2 whole to the power C. This formula you will remember. Convert क्या करना है, 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. First this you have to, this formula you will use, you will remember this formula. अब ये इसको क्या कन्वर्ट करना है, 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. You have to convert. तो इसको करने के लिए क्या करना है, कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट यू विल राइट दिस, कन्वर्ट क्या करना है, न्यूटन को डाइन में, यानी एसआई यूनिट को सीजीएस सिस्टम में। इधर क्या हो गया, एसआई यूनिट इधर हो जाएगा सीजीएस सिस्टम। Whatever I am teaching, you will remember this thing. In this way you will solve. So it will be very easy for any problem
you can convert this. तो पहले क्या लिखोगे, एक कॉलम बनाओगे, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, लेफ्ट साइड देखो SI यूनिट है और राइट साइड क्या है, CGS सिस्टम है। तो अब निकालना है क्या, ये N1 कितना हो गया 1, ठीक है, और ये निकालना है N2 निकालना है। तो ये यहां से क्या हो जाएगा, N1 इजिकल टू क्या हो गया 1 न्यूटन 1, और ये M1 इजिकल टू 1 kg, और L1 इजिकल टू 1 मीटर, और T1 इजिकल टू 1 सेकेंड। अब सीजीएस सिस्टम क्या निकालना है, N2 इजिकल टू व्हाट, क्वेश्चन मार्क, और ये M2 कितना हो जाएगा, M2 क्या है, मास है 1 ग्राम, और L2 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T2 कितना हो जाएगा 1 सेकेंड। अब देखो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का। न्यूटन क्या हो गया, फोर्स का। तो फोर्स हमारा क्या हो गया, F इजिकल टू MA, F इजिकल टू MA, M क्या हो गया, M कैपिटल, A के प्लेस पे लिख सकते हो LT-2। अब देखो यहाँ पावर क्या है, M का पावर A है, M का पावर यहाँ कितना हो गया 1 हो जाएगा, और L का पावर कितना B है L, यानी A इजिकल टू कितना हो गया 1, B इजिकल टू कितना हो गया 1, और C इजिकल टू कितना हो गया -2। सो दिस यू विल राइट, क्या लिखना है, A के प्लेस पे 1, और B के प्लेस पे 1, और C के प्लेस पे कितना हो जाएगा T⁻²। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट करना है, इस फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला क्या हो गया, N2 इजिकल टू क्वेश्चन मार्क, ये N2 इजिकल टू कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें। N1 के प्लेस पे कितना हो जाएगा, N1 के प्लेस पे 1। अब देखो इस फॉर्मूला में पुट करना है, M1 कितना हो गया 1 kg, और M2 कितना हो गया 1 ग्राम, अब पावर कितना हो गया, पावर दिस यू आर गेटिंग 1। अब देखो L1 कितना हो जाएगा 1 मीटर, अब बाय L2 कितना हो गया, L2 1 सेंटीमीटर, और पावर कितना है B कितना हो गया 1 हो गया। अब देखो T1 के प्लेस पे कितना हो गया 1 सेकेंड, और T2 के प्लेस पे कितना 1 सेकेंड, और पावर क्या है C कितना हो गया -2। Now you will solve this. If you are solving, you will get 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. Now see how will you solve. Okay, so it will be 1, देखो kg है और इधर ग्राम है, you have read 10⁻³ ग्राम हो जाएगा 1 ग्राम, और पावर कितना हो 1 हो जाएगा। यहाँ देखो मीटर है 10⁻² सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, और यहाँ ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 का पावर क्या होगा 2 हो जाएगा, यानी 1/1, यानी 1/1 इज इक्वल टू 1। देखो x⁻⁻ क्या m है, तो कितना हो जाएगा 1/x⁻m। यहां पर कितना हो गया, सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या है 1/1, 1 बचेगा, और 1 का पावर कितना हो गया -2। देखो x⁻m है, क्या होगा 1/x⁻m, तो क्या होगा 1/1 स्क्वायर, तो 1/1 1, यानी इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो, ये 1 लिख सकते। सेंटीमीटर यू कैन कैंसिल, ग्राम यू कैन कैंसिल। Okay, so it will be 10⁻³
10 to the power 2 यानी क्या होगा 10 to the power 5. Therefore you can write down 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. In this way, this I have given, you can solve this. कैसे सॉल्व करोगे? दूसरा, ओके, दिस अदर वन यू कैन ट्राई टू सॉल्व. कन्वर्ट क्या हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 10 to the power 7 अर्ग. This you will convert. Okay, if you have doubt you will ask, then again I will explain. So these things you have read, two applications you have read, two applications of dimensional analysis to check the correctness of physical relation or to convert one system of unit into another system. Next you will study next application to derive formula. किस टाइप का फॉर्मूला डेराइव करोगे? थर्ड एप्लीकेशन में. तीसरा F इज इक्वल टू क्या हो गया m v स्क्वायर बाय r सेंटीपिटल फोर्स या टाइम पीरियड. बॉब जो है सिंपल पेंडुलम है, ऑसिलेट करेगा. द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाय g. इस तरह से you will derive formula to check the correctness of physical relation, to convert one system of into another system, and to derive formula. This derivation you will study in next class. Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Thank you very much.